Yeah, hello, good evening, everybody. I'm Dr. Aditi Nadkarni. Today, I'm going to speak with you all on general topics on infertility and PCOD and endometriosis, etc. So you can shoot your questions to me. You can just put on your questions in the chat, and I'll try my best to solve them. So basically, I'm really glad to interact with you all through this live session. I Am Fine, which is a great initiative towards building a community of like minded women and addressing the common issues that we all face in day to day life. It is inspiring to see all of you coming forward, and this motivates me to be a part of this community and help you in a way that I can with my knowledge and whatever I have to give you. So we have been receiving a lot of questions on infertility and fertility issues in ladies, in women, across all platforms. So we would be answering a few of them, and few of them, if you have any queries, you can just let me know. You can just ask me anytime. So we'll be answering them through this session. So please note that this is just a general awareness discussion. For specific issues, you may have to consult your local gynecologist. And we are not endorsing any product, or we are not criticizing any brand. So let us all refrain from using any brand names in the comments as well. If you don't know the actual component which is in the brand, you can just ask me, and we'll keep this discussion as a clean and a healthy discussion. So yes, there are a few questions already coming to me from the audience. So one is, when should I worry if I have been trying to get pregnant but I can't? Okay, so basically you should be worried if your age is more than 35. You should be worried if you're not able to conceive within 1 years of your active married life, 1 or 2 years, because nowadays, the age of the couple, age of the lady increases because of other priorities, because of priorities to your to your career, to your family, etc., etc. So if you feel that you've been trying for a long time, for another 1 or 2 years, and with unprotected sexual intercourse, if you're not able to conceive, then you have to worry. Secondly, if you're more than 30 or 35 years of age and you've been trying for a long time, you should worry. Both the age of the couples matter a lot, the lady and of course her husband. If the husband's age is also more than 40 or more than 45 years of age, it will definitely affect the sperm quality, the sperm quantity, and the sperm morphology. So you have to worry about, it's not that just the lady is we are worried about. Of course, the husband, the male counterpart, is equally important. Okay, so the second question, when can my partner and I, what can my partner and I do to improve our chances of conceiving? So this is the another question which I came across. Basically, if you feel that you've been trying, you are just, अंधेरे में हम निशान मार रहे हैं, you can just consult your gynecologist, consult your infertility specialist. She'll really help you out. Basically, you should know which are the critical days of fertility, or which are the important days when you will be able to conceive. So if you know the danger period means not in the literal sense, but if you have intercourse, then there are higher chances that you might get pregnant. So you should know that usually on a regular basis, in a regular cycle, a lady ovulates on in and around 10th day to 18th day of her menstrual cycle. So if you count the days from second or third day of the menses, from 10th day to 20th day is the danger period. So that is the time when if you come into contact, there is a higher chance of you conceiving a baby. So you should know that. You can do your ovulation study. That is, you can do your ultrasonography, which can be done by your gynecologist or it can be done by your radiologist, and she will tell you
he or she will tell you whether you are ovulating or not. You can also check your ovulation time by using the LH kits, which are very, very easily available nowadays. So you can do that. And fourthly, you have to basically know whether the tubes, the fallopian tubes of the lady are patent, they are open, tubes are normal looking, and in the male counterpart, the sperm count, the sperm motility is very important. So these are the important factors which will decide your fertility, which will, guide you through your planning a baby. Now, some more questions. Uh, could the length of my cycle affect my fertility? Yes, it depends on your length. Sometimes in a PCO patient, the length of the cycle is elongated, it is increased, because in PCO patients there are anovulatory cycles. Ovulation ही नहीं होता है, स्त्री बीज ही नहीं निकलता है. That is one main cause of infertility in PCOS. So in such patients, because of the length of the cycle being increased, the ovulation time is also delayed. So in a PCO patient, usually there is delayed ovulation, and that is why delayed conception. So even if you don't conceive, you may get good surprises. So my PCO ladies, don't be disheartened. Sometimes miracles do happen. You have to check your urine pregnancy test little later, little further, because you are ovulating little later. So yes, your length of the cycle definitely affects your fertility. So you should know at what period of time you are or you may ovulate. Okay. Could a previous abortion or having a baby and pill affect my fertility? Pills per se are safe unless you have taken them for a long time, like really long time. I've known some of my patients taking pills for like ages, 1 year, 2 years. Arey chana mamra hai kya? Why you guys are eating so many pills? No, you can't have pills for such a long time, because it will affect your overall hypothalamo-pituitary axis, and it will definitely lead to a decrease in your fertility potential, and most important, it will lead to libido. You know what is libido? Libido is decrease in the sexual drive. So that is very, very bad for any couple, and I feel long consumption of pills is really very bad. So please refrain from having pills. बहुत लंबे समय तक आप pills खाएंगे तो वो आपके हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट करता है. और इफ यू हैव अंडरगॉन एन अबॉर्शन हो चुका है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप वापस प्रेग्नेंट ना हो पाए. इनफैक्ट आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो. इसीलिए हम यूजुअली वी एडवाइज अवर पेशेंट की थोड़े से आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, या तो आपको कॉन्डम या तो कॉपर्टी बिठा सकते हो फॉर सम लॉन्ग टाइम, अगर आपको जल्दी प्लान नहीं करना हो तो फर्टिलिटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है, बट बहुत जोरों से अफेक्ट ना हो ऐसे हो सकता है. सो चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो विच फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर बेस्ट फॉर अस? देखो, अलग अलग ट्रीटमेंट्स, different treatments are for different patients. It's not that there is one particular treatment and it's like a blanket treatment. We have to give different injections, different treatment protocols, different medicines for different patients. So it's not that a particular blanket treatment will be fine for all patients. It depends a lot on different factors and different perspectives for the patient. How is female infertility diagnosed? Infertility in females can be diagnosed by the way I said, that if you feel that within a year or two the female is not able to conceive, अगर आप नहीं conceive कर पा रहे हो in spite of everything you've tried, then you have to check for the tubes. आपको tubes check करने हैं, आपका ovulation हो रहा है कि नहीं, स्त्रीबीज निकल रहा है कि नहीं, वो आपको check करना है, और आपको एक routine sonography करनी है, ताकि और कोई भी फैक्टर्स हो, जैसे फाइब्रॉइड्स हो यानी गर्भाशय के गांठ हो, या गर्भाशय के मुख पे कोई अगर खराब जख्म हो, तो उससे जो लिक्विड होता है, जो सिक्रीशंस, नॉर्मल सिक्रीशंस होते हैं, सर्वाइकल सिक्रीशंस, वो डेफिनेटली अफेक्ट हो सकते हैं. और ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकता है. ओके. कैन PCOS affect
चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। हाँ, पीसीओएस यानी आपने बहुत बार सुना है पीसीओएस है, मुझे पीसीओएस है। पीसीओएस यानी क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं इसको। बहुत आजकल बहुत कॉमनली ये पाया जाता है because of lifestyle, because of stress, because of environment, and of course it is genetic also. बट सब कुछ हम जीन्स पे नहीं डाल सकते हैं ना, थोड़ा हमारा भी होता है। हम भी खाते पीते हैं, हमारे पेट में भी कुछ कुछ जाता है, बर्गर जाता है, पास्ता जाता है, पिज्ज़ा जाता है। तो ये सब जो खाते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे हमारा वेट गेन होता है, उससे हमको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो फर्दर इंक्रीज होता है। इसको पीसीओएस बोलते हैं। जो क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं पीसीओएस के वो होते हैं मासिक अनियमित आना, मासिक देर से आना और लंबा जाता है मासिक का जो साइकिल है वो। फिर किसी किसी को पिंपल्स आ जाते हैं, किसी किसी को रूटी पे बाल आ जाते हैं, ओवरऑल बहुत हैरी हो जाते हैं लेडीज, और ओव्यूलेशन नहीं होता है यानी कि सीबीज टाइम पर नहीं निकलता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो सिंपल पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। प्लस वेट गेन होता है। वेट गेन यानी आप अगर खाते पीते हो और अगर आप डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, एक्सरसाइज जीरो, तो डेफिनेटली आपको पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा हद से बढ़ सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी सवाल आया है ऑडियंस में, आई एम ओवरवेट, विल लूजिंग दैट एक्सेस वेट हेल्प मी टू गेट प्रेग्नेंट? Yes, yes, yes. It will definitely help you to become pregnant because जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आपके हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, आपका ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन यानी स्त्री बीज निकलेगा। और सपोज आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले भी रहे हो तो आपको जो हम दवाइयाँ देते हैं, जो हम इंजेक्शंस देते हैं, उसका प्रमाण हद से ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि सपोज कोई मोटा पेशेंट है, उसको मुझे 300 डोज देना पड़ता है, और अगर आप पतले हो जाते हो तो मुझे 100 इंटरनेशनल यूनिट्स में या 150 में आपका स्त्री बीज बन सकता है। तो देखा आपने कितना स्टार्क डिफरेंस है, कितना फर्क है। तो डबल डोज लगता है कोई मोटे पेशेंट को। ऑफ कोर्स मोटे पेशेंट में हम पहले उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को एडवाइस करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो मोटिवेटेड है वो हो ही जाते हैं पतले, लेकिन उसमें से 15-20% ऐसे लेडीज होते हैं जो ट्राई करने के बावजूद उनका नहीं हो पाता है। तो देन अगर इवन इफ उन्होंने थोड़ा सा भी 5-10% भी अगर वेट लूज किया है, हम धीरे धीरे उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जरूर दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, और वेट लूज करोगे तो 100% आपको वो फर्टिलिटी आपका रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। और एक क्वेश्चन आया है, हाउ डज एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट फर्टिलिटी एंड माय एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट? अभी व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? हमने बहुत पढ़ा है, आजकल गूगल बाबा तो है ही, तो गूगल करते हैं, उससे बहुत सारे सवाल हम अपने आंसर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी गूगल को भी नहीं पता कि गायना के पास जाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गूगल आपको एंडोमेट्रियोसिस से छुटकारा नहीं दे सकता है। अभी एंडोमेट्रियोसिस क्या है? गर्भाशय के अंदर का जो पड़ होता है, जिसको हम इंग्लिश में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल सेल्स जो है, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है, वो अगर गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगे, यानी गर्भाशय के अंदर बढ़ने से अलावा अंडकोश में बढ़ने लगे या ट्यूब्स में बढ़ने लगे या पेल्विक कैविटी में बढ़ने लगे, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी प्री डिटरमाइंड होता है, किसी किसी को होना होता है, वो हो जाता है। सेकेंडली, अगर एक थियरी है कि जो मासिक का जो ब्लड है वो रेट्रोग्रेड पीछे जाए, ट्यूब्स की तरफ बाहर से आए, तो फिर वो एक थियरी है कि उसके कारण कभी कभी ट्यूब से जो खून आता है वो बाहर आता है और फिर वो अंडकोश में जाके बैठ जाता है, और फिर अंडकोश का जो एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, वो सबसे कॉमन मात्रा में पाया जाता है। एक बात बोलती हूँ, मजे की बात नहीं, बट यूजुअली जो अच्छी दिखने वाली गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस उनको ही देखा जाता है, पाया जाता है। एक बहुत हसीन एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट यस, उनको भी एंडोमेट्रियोसिस हुआ था और वो ट्रीट भी हो गया। ओके, तो
इस प्रकार से है कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही इंट्रिग्यूइंग टॉपिक है, बहुत ही एनिग्मा है। एनिग्मा आप समझते हो कि इट्स लाइक कि समझ में नहीं आता ऐसा टॉपिक है। क्यों होता है, कैसे होता है, और क्यों बढ़ते जाता है, वापस रिकरेंस क्यों होता है, अरे मेरा तो ऑपरेशन हो चुका था डॉक्टर, वापस मुझे कैसे आया एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस इज अ सागा, इट्स एन एनिग्मा। तो ये जानने के लिए आज मैं खास यहाँ पे आपके क्वेरीज सॉल्व करने वाली हूँ। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर बहुत बड़ा आपको अंडकोश में गांठ है, खून की गांठ है, तो वो आपको दूरबीन के जांच से यानी लैप्रोस्कोपिकली उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक अंडकोश में है वो फैल सकता है। जैसे कैंसर फैलता है वैसे ही, ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट कैंसर माइंड यू, बट कैंसर से भी मींस कैंसर जितना ही वो हॉरिबल चीज होती है, क्योंकि वो फैलता है और वो दूसरे अंडकोश में उसका मात्रा बढ़ाता है, दूसरे अंडकोश में आता है। उसके बाद आपको मासिक के टाइम पे बहुत पेन होता है, दैट इज डिस्मेनोरिया आपको हो सकता है। डिस्पैरिनिया यानी कि जब आप रिलेशन रखते हो, इंटरकोर्स करते हो, तभी आपको पेन हो सकता है, और आपको बेबी रुकने में यानी कि इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बेबी तो आपको हो जाएगा, लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में जब मासिक आता है तभी के टाइम पे जो आपको सिवियर पेन होता है, वो पेन के कारण मेरे पास इतनी सारी गर्ल्स आती हैं, जो लेडीज आती हैं, गर्ल्स अभी ऑफकोर्स अभी स्कूल नहीं है, बट उनको इतना पेन होता है कि वो कुछ और कर ही नहीं पाती है। सो बेसिकली ये ट्रीट करना है, बिकॉज वो लेडी को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है, अच्छा वो लाइफ में कुछ कर सके, ताकि ये उनको एक हैंडीकैप ना हो। इट इज लाइक अ हैंडीकैप। इतना सिवियर पेन है कि द लेडी इज नॉट एबल टू डू, इज नॉट एबल टू परफॉर्म हर डे टू डे ड्यूटीज, दैट इज रियली बैड। सो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस जिनको भी है उनको प्लीज ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूरबीन के तपास से वो पूरा जो एंडोमेट्रियोमा है, एंडोमेट्रियोमा की जो गांठ है वो निकाली जाती है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर मेडिसिन आता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम डाइनोजेस्ट बोलते हैं। वो मेडिसिन हमको, वो लेडी को या वो लड़की को हमको 6 मंथ्स तक दे सकते हैं, जिससे उनको पेन बिल्कुल कम हो जाएगा, और उनको जो एंडोमेट्रियोसिस की जो गांठ है वो वापस नहीं आएगी। और जो माइक्रो डिपॉजिट्स है जो हम हमारी आंखों से देख नहीं सकते, वो माइक्रो डिपॉजिट्स का भी वो दवाई टेक केयर करेगा, ताकि वो वापस आपको बार बार नहीं आएगा। ठीक है, सो ये थे थोड़े सवाल, और कुछ भी सवाल हो तो आप बता सकते हैं, आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और सवाल है, will lifestyle modifications help? Do I need modifications and medications to treat endometriosis? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बेसिकली जैसे मैंने बोला, पीसीओएस जैसा नहीं है एंडोमेट्रियोसिस, वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड यूजुअली ऑफ कोर्स आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो, कुछ भी करो, लेकिन यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स इतने ओबीज नहीं होते, इतने मोटे नहीं देखे जाते हैं। बेसिकली उनको वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, या तो फिर कोई और कारणों के कारण उनको एंडोमेट्रियोसिस हुआ होता है। तो उनके लिए आपको बेसिकली ट्रीटमेंट लेना इज ऑलवेज बेटर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, वो आपको लेने ही लेने हैं टू प्रिवेंट एनी अदर डिजीज फ्रॉम हिटिंग यू। एंड मेडिकेशंस भी है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, बट अगर वो गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बड़ी है, तो गोली से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको दूरबीन से उसको पहले हटाना पड़ेगा, और फिर आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो हाँ, एक क्वेश्चन आया है, ग्रेड 3 एंडोमेट्रियोसिस, उनको आप कैसे प्रेग्नेंट कर सकते हो? ओके, ये एंडोमेट्रियोसिस है ना, उनके 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, और ग्रेड 4 होता है। ओके, अभी ग्रेड 1 2
इतने सिवियर एंडोमेट्रियोसिस नहीं होते, क्योंकि यूजुअली वो एक साइड को अफेक्ट करते हैं और यूजुअली उसमें ट्यूब्स नॉर्मल होते हैं। ओके, जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होते हैं उसमें बहुत पूरा जो पेल्विक कैविटी है, जो आंतड़े है, जो ओमेंटम है, वो चिपका हुआ होता है और यूजुअली ट्यूब्स उनके बिगड़ गए होते हैं। ट्यूब्स गर्भाशय के पास या आंतड़ाओं के पास चिपक गए होते हैं, जिसके कारण ट्यूब्स ओपन नहीं हो। तो ऐसे पेशेंट्स को जल्द से जल्दी हमको आईवीएफ का ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का जो पानी है, एंडोमेट्रियोसिस की जो गांठ है, वो बाकी के जो स्त्री बीज हैं, जो नॉर्मल स्त्री बीज है, उनको भी वो अफेक्ट कर सकता है। सो आपको एएमएच द्वारा, एएमएच करके एक हार्मोन होता है जो हमको बताता है कि आपका स्त्री बीज देने की जो क्षमता है, आपकी स्त्री बीज देने की जो क्वांटिटी है, तो वो कितनी है। तो एएमएच आपको चेक करना है। एएमएच यानी एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। एएमएच द्वारा हमको पता चलता है कि आपकी एग गिविंग कैपेसिटी कितनी है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के पहले और उसके बाद हम ये एएमएच चेक करते हैं। अगर एएमएच आपका हद से ज्यादा कम है, 1.5 नैनोग्राम्स पर एमएल से कम है, तो आपको डेफिनेटली देखना है कि आपके सीवीज देने की क्षमता कैसी है। वो सोनोग्राफी में पता चल जाता है और फिर हमको डिसाइड करना है कि जल्द से जल्द आपको बेबी देना है। तो कभी कभी आईवीएफ के माध्यम से हमको आपको ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस, प्लीज डोंट वेट, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि एएमएच लेवल अगर और फर्दर नीचे चला जाता है तो फिर आपको आईवीएफ या तो फिर ओवम डोनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर और क्वेश्चंस थे। हाँ, आपके एक्सपीरियंस में जीएनआरएच एगोनिस्ट इंजेक्शन बेटर है या डायनोजेस्ट देना अच्छा है फॉर एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस? जी, ये क्वेश्चन, ये सवाल एक्चुअली डॉक्टर के पास से आ रहा है, जबकि ये जो सेशन है वो जनरल पब्लिक के लिए है, बट नेवरदलेस आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली ये जो जीएनआरएच एनालॉग इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन 3 महीने तक काम करता है या 6 महीने तक काम करता है। जो 3.75 वाला है वो 1 या 3 महीने तक काम कर सकता है। उससे बेसिकली जो सर्जरी के पहले जो हमको फोल्ड्स चाहिए, जो हमको अच्छे से डिसेक्शन करना है, तो डेफिनेटली ये इंजेक्शन हमको देना है। और सर्जरी के बाद अगर आप देते हैं तो वो आगे जाके 1-2 महीने के बाद फिर हम डेफिनेटली आईवीएफ साइकिल कर सकते हैं। तो अगर कोई यंग पेशेंट है और जिनको अगर फर्टिलिटी इश्यूज नहीं है, अनमैरिड पेशेंट है, तो उनको डेफिनेटली हम डायनोजेस दे सकते हैं फॉर एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस। सर्जरी के बाद अगर उनको टेंशन है कि मुझे वापस रिकरेंस नहीं होना चाहिए डॉक्टर, बट अभी जल्दी हमको बेबी अभी प्लान नहीं करना है बिकॉज जस्ट मेरा एंगेजमेंट हुआ है, तो यस डेफिनेटली उनको हम डायनोजेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट करना है और ऐसा है कि वापस वापस आप वो सर्जरी नहीं करना चाहते, रिकरेंस नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको हम वो एक जीएनआरएच एगोनिस्ट करके इंजेक्शन आता है, वो हम आपको दे सकते हैं। और एक सवाल है, हाउ कैन बी इम्प्रूव एएमएच आफ्टर एज 35? ये सवाल एक्चुअली देखो, एएमएच क्या होता है? एंटी म्यूलेरियन हार्मोन होता है। एएमएच आपका प्री डिटरमाइंड होता है, वो आप पैदा होने के बाद कोई उसको बदल नहीं सकता। इट इज जेनेटिक। ओके, जो अपने फॉलिकल्स है, जब कोई लड़की उनके माँ के पेट में होती है, तभी से ही ये प्री डिटरमाइंड होते हैं कि ये पूरे इसके लाइफ में कितने अंडे दे पाएगी, कितने अंडे उसके ओव्यूलेट होंगे, कितने अंडों के बेबीज बनेंगे, कितने अंडे फर्टिलाइज। सो ऑल दीज थिंग्स पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं, कितने उसके प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल काउंट, एंट्रल फॉलिकल्स उनके अंडकोश में होंगे। सो दैट इज डिसाइडेड इन द एम्ब्रियो स्टेज, यानी फीटस स्टेज में प्री डिटरमाइंड होता है। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे फीटस के भी वो एग्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, फिर बेबी बॉर्न हो जाता है। और फिर जब वो 12-13 ईयर्स की हो जाती है, तभी उसका वो एक्टिविटी शुरू हो जाता है।
स्त्रीबीज बनने का जो एक्टिविटी है, फिर वो पीरियड्स में आ जाती है, यानी कि मिनार्क होता है बेबी, वो लड़की को अराउंड 12-13 ईयर्स। आजकल मिनार्क जो है वो जल्दी दिखने लगा है, यानी कि यंग गर्ल्स को भी जल्दी पीरियड्स आने लगे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ऑल द मॉम्स हु हैव डॉटर्स, आपके जो लड़कियां हैं जो 9-10 साल की है, उनको पहले से ही आपको प्राइम करना है कि पीरियड्स क्या होता है, पीरियड्स में क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा। हाँ, सो दैट इज अ पार्ट। बट AMH आप बदल नहीं सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको AMH बढ़ाना है तो एक स्पेशल मेडिसिन आ सकती है जिसको DHEA बोलते हैं, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरिडियोन। बट वो आपको सपोज आपको एग्स इंक्रीज करने हैं, किसी किसी के इंक्रीज हो सकते हैं विद DHEA टैबलेट्स, बट किसी किसी के अगर जीन्स में ही नहीं है, अगर पहले से ही उनका ओवेरियन फेलियर का जो ये है वो शुरू हो चुका है, तो फिर DHEA उसको हेल्प नहीं करेगा। बट अगर किसी को वो एक्टिविटी अभी तक है, जो प्री एंड्रल फॉलिकल एक्टिविटी अगर अभी भी है, तो फिर DHEA उसको थोड़ी मदद कर सकता है। ओके, DHEA करके वो टैबलेट्स आते हैं जो 75 मिलीग्राम के आते हैं, सस्टेन रिलीज आते हैं, तो वो यस वो आप खाते हैं 3 मंथ्स बिफोर यू प्लान अ बेबी, तो इट माइट हेल्प यू। बट एज आई सेड, यस हर एक इंसान अलग होता है, किसी किसी को वो मदद कर सकता है, किसी किसी को इट just may not help. So how can you treat thin young patient with PCOS and hirsutism? Yes, अगर एक young patient है जिसको PCOS है, usually उसको hirsutism हो सकता है because of hormonal issues. So हम usually short ये oral contraceptive pills के tablets देते हैं first to regularize, उसको regular करने के लिए menses, जिससे उसको जो hirsutism हुआ है, यानी कि जो बाल आ रहे हैं, वो ये tablets will also take care of that. Okay, plus her irregular periods will also be taken care of in a thin PCO patient. So PCOs दो टाइप के होते हैं, एक thin होते हैं और एक obese यानी मोटे PCOS patients होते हैं। तो you have to see कि कौन से टाइप ऑफ PCOS हैं। तो अगर वो obese है, अगर वो थोड़ी सी मोटी है, तो उसको अलग टाइप ऑफ OC pills दिए जाते हैं। अगर वो thin है तो उसको अलग टाइप ऑफ OC pills दे सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल weight taken into consideration, symptoms taken into consideration, because every PCOS has different symptoms, so accordingly it will matter. Okay, so how endometriosis recurrence rate is common and how we can manage this? Yes, endometriosis recurrence rate per se, it is around, you can say in India it is around 15%, 15 to 20%. It usually occur होता है अगर आपका जो फर्स्ट सर्जरी है वो आधा अधूरा हुआ है, वो एक कारण हो सकता है। या तो फिर सेकंड, अगर जो एंडोमेट्रियोमा का जो सिस्ट वॉल होता है, जो वॉल यानी जो छिलका होता है, जैसे कोई भी सिस्ट होता है ना, उसका एक कवरिंग होता है, वो कवरिंग सहित अगर हम नहीं निकालते हैं, तो फिर देयर इज अ चांस कि एंडोमेट्रियोमा आपको वापस हो सकता है, रिकर हो सकता है। विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स वो रिकर हो सकता है। तो इसके लिए मैनेज करना, यानी कि एक तो जैसे मैंने बोला वो टैबलेट्स ले सकते हैं अगर बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोमा नहीं हुआ है, वो एक है। और दूसरी बात है वो GnRH एगोनिस्ट, जो मैंने इसके पहले बोला था, वो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, वो इंजेक्शन आप दे सकते हैं। 3 मंथ्स का आता है, 6 मंथ्स का आता है। 6 मंथ्स का जो डोजेज है वो 11.25 मिलीग्राम का आता है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि अगर वो आप इंजेक्शन लेते हो तो कभी कभी मासिक बंद हो सकता है फॉर 3 मंथ्स टू 3 मंथ्स। सो देन उसकी आप चिंता मत करो, वो एक प्रयास होता है कि वापस आपको वो एंडोमेट्रियोमा रिकर ना हो, और आपके जो माइक्रो डिपॉजिट्स हैं उनको भी ये इंजेक्शन बिठा देता है। तो इस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं जो रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस है वो। और कुछ सवाल, और किसी को कोई सवाल है तो आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, एक सवाल आया है, वी आर गोइंग फॉर IVF बिकॉज माई स्पाउसेस एज is 40. It's the second time to go for IVF. What things we have to take for getting success in IVF
in the second time. Okay. जी, all the best to you for going for IVF. Don't worry. कभी कभी क्या होता है ना, IVF में क्या होता है कि जो एज जो है वो भी मैटर करता है, बिकॉज एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जैसे मैंने पहले ही बोला कि एज विल डिसाइड, विल प्री डिटरमाइन कि आपकी एग्स देने की क्षमता कैसी है. एग्स अगर मिल भी जाते हैं तो एग्स की क्वालिटी कैसी है वो भी अफेक्ट करता है. एग्स अगर नॉर्मल आए, अच्छे आए, तो फिर एम्ब्रियोज भी अच्छे आएंगे. अगर एम्ब्रियोज यानी भ्रूण, जो एम्ब्रियोज अच्छे से बन गए तो अच्छे से एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, तो डेफिनेटली आपको यश मिलेगा. ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपके लिए. सेकेंड टाइम आईवीएफ में सक्सेस मिलना इज ऑलमोस्ट उतना ही जितना फर्स्ट टाइम में है. ओवरऑल इन द फर्स्ट टाइम आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अराउंड 40 to 50%. सेकेंड टाइम 50 to 60%. थर्ड टाइम 55 to 60%. तो जैसे जैसे हम सेकेंड साइकिल में जाओ या थर्ड साइकिल में जाओ, यू डोंट बी डिसहार्टेंड. डेफिनेटली आपको यश मिलेगा, अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी. और अगर आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. नो इश्यूज. यस. हाउ कैन वी मैनेज abnormal uterine bleeding in a newly wedded female 27 years old who wants to plan for pregnancy? Thyroid hormone and prolactin hormone are normal. Fine. So basically ये जो young girl है, 27-year-old female है, और उनको abnormal uterine bleeding हो रही है. अभी सबसे पहले हमको जांच करना है कि क्यों उसको abnormal uterine bleeding है. Because at 27 years of age, basically उनको hormonal issues होंगे, कुछ ना कुछ होगा, because of which she is having so much of bleeding. Bleeding is basically for a longer time उनको bleeding हो रहा है. तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं. एक तो उसको एडिनोमायोसिस हो सकता है. एडिनोमायोसिस क्या होता है कि गर्भाशय का जो मायोमेट्रियल टिश्यू है, एक तो एंडोमेट्रियम है जो सबसे अंदर का निचला भाग है, उसके बाजू का जो भाग है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं. अगर मायोमेट्रियम में सूजन आता है उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, जो यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ देखने में आता है. तो आपको रूल आउट करना है सबसे पहले कि उसको एडिनोमायोसिस तो नहीं है. दूसरी बात है, आपको रूल आउट करना है, देखना है कि उसको पॉलिसिस्टिक ओवरी तो नहीं है. तो ये सब आप कैसे रूल आउट करोगे? एक तो उनका आप सोनोग्राफी करो और देखो कि उनको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों हो रहा है. और आप एक हिस्ट्रोस्कोपी उसका कर सकते हैं, जिसमें अगर कुछ छोटा सा सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो अंदर सबसे इनर पोर्शन है, उसमें अगर कोई फाइब्रॉइड है, कोई मस्सा है यानी कि पॉलिप है, या कोई कभी कभी फाइब्रॉइड के कारण उसमें जो जगह है उसके कारण उसको मासिक का स्त्राव ज़्यादा जा सकता है. तो अगर फाइब्रॉइड या पॉलिप है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि यूट्राइन ब्लीडिंग यूं ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर वो यंग लेडी को होगा जिसके कारण उनको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स आपको पीसीओ रूल आउट करना है. अगर पीसीओ है तो उसको डेफिनेटली थोड़ा सा 2-3 मंथ्स आप डाउन रेगुलेट करो, ओसी पिल्स देना, डाउन रेगुलेट करना, उसके पीरियड्स को रेगुलर लाना, एंड देन यू कैन जस्ट प्लान हर प्रेगनेंसी. There's one more question. Recurrent urine tract infection is treated by which drug? If you are trying at the time of ovulation, but the next day you are suffering from urine tract infection, then what to do? Okay, urine tract infection बहुत commonly पाया जाता है. Usually intake of water जो है, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं पानी पीना. So सबसे पहले आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपका वाटर इनटेक बढ़ाना है. फिर जो आपको बार बार हो रहा है तो आपको एक बार गायनेक चेकअप डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी योनि मार्ग में इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है, जो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है. तो बार बार आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की जरूरत, कारण क्या है? वजाइनल इन्फेक्शन हो तो ही फिर आपको बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. तीसरी बात है, जो आपका मेल पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, उनको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इट इज़ बिकॉज इन एंड अराउंड वही टाइम पे
इंटरकोर्स के बाद अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ धातु में या वीर्य में इन्फेक्शन होगा जो बार बार आपके अंदर आ रहा है और फिर आपको बार बार वो इन्फेक्शन पकड़ रहा है। ओके, सो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर से अगर बार बार आपको होता है तो आपको एक डिफरेंट मेडिसिन आता है जिसको फॉस्फोमाइसिन बोलते हैं। ओके, फॉस्फोमाइसिन जो पाउडर आता है वो आपको रात को पीना है 200 ml पानी में डाल के, और बहुत सारा पानी पीना है। एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन आपको करना ही करना है। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दवाई आते हैं, आपको एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन टैबलेट्स लेके। ओके, तो वो अगर आपको प्रॉपर आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज है डॉक्टर अदिति नाडकर्णी, उस पर मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगी कि यूटीआई में आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट मैं आपको लिख के दे दूंगी। ओके, my sister has chocolate cyst in both ovaries, 5 centimeter size. She wants a second baby. Which is better between laparoscopic surgical cystectomy then ovarian stimulation, or directly go for ovarian stimulation? Okay, fine. So this is the question coming from one sister because her sister has this chocolate cyst. अभी chocolate cyst क्या होता है? chocolate cyst यानी कि endometriosis. Okay, endometriosis का दूसरा नाम है chocolate cyst of the ovary. अभी इसको chocolate cyst क्यों बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब भी हम ये endometriosis का सर्जरी करते हैं, जब हम वो cyst का जो निकाल के उसका जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल चॉकलेट जैसे दिखता है, बिल्कुल डिट्टो चॉकलेट जैसे दिखता है। आपने डेयरी मिल्क का सिल्क चॉकलेट देखा है? वो सिल्क को तोड़ के कैसे वो चॉकलेट बाहर आता है, चोको लावा जैसे, सेम वैसा दिखता है। उसके कारण इसको चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी बोला जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, बट यस, चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी, इनको 5 सेंटीमीटर साइज है, दोनों साइड में है, यानी कि बायलैटरल होगा। तो जब बायलैटरल होता है, दोनों साइड में होता है और काफी बड़ा है, 5 सेंटीमीटर साइज है, आई थिंक उनको पहले दूरबीन के तपास से शी शुड गेट रिड ऑफ दिस सिस्ट, एंड उसी दरमियान हम उनके ट्यूब्स भी चेक कर लेंगे, उनका एएमएच रिपोर्ट भी चेक हो जाएगा, जिससे उनको स्टिमुलेशन में मदद होगा। क्योंकि अभी क्या होगा कि वो सिस्ट इतने बड़े बड़े हैं, वो बाकी के जो नॉर्मल एग्स है, नॉर्मल स्त्री बीज जो हैं, उनको भी अफेक्ट करेगा और फिर उनकी क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। सो इट इज अकॉर्डिंग टू मी, पहले उनको वो सिस्ट एक्सीजन करना चाहिए, सिस्टेक्टमी करना चाहिए, and then we should give her ovarian stimulation and plan her pregnancy. That is my opinion for you. Okay, और क्वेश्चन है, what could be the reason of recurrent miscarriage? recurrent miscarriage एक अलग ही टॉपिक है, एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो इनफर्टिलिटी के साथ साथ जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मेन कारण उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो एज क्या है पेशेंट की, वो आपको देखना है। सेकेंडली रीजन एक तो बेबी एक रीजन हो सकता है, या तो माता रीजन हो सकती है। अभी मदर में क्यों रीजंस है रिकरेंट मिसकैरेज के? एक तो उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज ऐसे फॉर्म हो जाते हैं जिसके कारण वो खुद के बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उनका जो यूट्रस है, उनका जो ब्लड है, वो खुद के ही बेबी को एक फॉरेन बॉडी जैसे मानता है। और जैसे अभी सपोज आंखों में कुछ गया, आपके कुछ कचरा जैसे गया, तो झड़प से आप ऐसे से उसको हटाते हो, you try to remove the eyelash which has gone inside your eyes. Okay, so still, even if the eyelash is your own, but it is irritating your eye, right? वैसे ही बेबी खुद का है, आपका खुद का ही है, लेकिन यूट्रस इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, यूट्रस इज नॉट एबल टू recognize it. So that is one cause of recurrent miscarriage. Second, कभी कभी एंटीबॉडी, जैसे मैंने बोला अपला सिंड्रोम, APLA, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, वो पॉजिटिव आ सकता है। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, थायराइड के एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये थोड़े हाईफाई एंटीबॉडीज है जो आपको टेस्ट करने हैं। फिर थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग, कभी कभी कोई ऐसे इनबॉर्न एरर्स होते हैं
इनबॉर्न एरर्स ऑफ थ्रोम्बोफिलियाज, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो आपके बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी खुद पेशेंट में ही कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, लाइक कभी कभी द लेडी हैज टर्नर सिंड्रोम, द लेडी कुड बी हैविंग एनी अदर डिफरेंट सिंड्रोम्स, जो उनका जीन्स है वो बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक टेस्टिंग भी कर लेना चाहिए अगर बहुत टाइम से बेबी नहीं रुक रहा है तो। फिर कमिंग टू द बेबी, अगर बेबी में ही कुछ तकलीफ है, अगर बेबी में ही कुछ जेनेटिक इश्यूज है, बेबी में अगर ट्राइजोमी है यानी कि कुछ डाउन सिंड्रोम आने वाला है, या ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 13, जो बेबी के जीन्स में कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर बेबी वो आगे नहीं जा सकता है और उसका विकास नहीं हो सकता है। उसमें अगर कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या बेबी में कुछ हार्ट बीट का डिफेक्ट है, कार्डियक डिफेक्ट है, तो भी ऐसा हो सकता है कि बार बार बेबी आपका मिस हो रहा है, बार बार आपका 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स पे फिर सडनली आपको हार्ट बीट्स बंद हो जाते हैं या मिस कैरेज हो जाता है, यानी कि आपको फिर बार बार ये मिस कैरेज का दुख सहन करना पड़ता है। सो ये थोड़े इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं मिस कैरेज के। उसके अलग अलग टेस्ट आते हैं जो अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो बाद में। हाउ कैन आई रिवर्स एंडोमेट्रियोसिस नेचुरली, इज इट पॉसिबल? एंडोमेट्रियोसिस रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अगर वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ा है तो फिर वो रिवर्स हम नहीं कर पाते हैं, आपको निकालना ही ज़रूरी है, निकालना ही आपकी भलाई है। तो दैट इज़ द ओनली source, that is the only method how you can, you know, reverse it. Yeah, by removing it only then you can reverse it and get rid of it. That is my advice to you. What is the best treatment for a 34-year-old with 2 centimeter chocolate cyst with AMH 1.6? 34-year-old है, छोटा सा ही सिस्ट है, 2 सेंटीमीटर है और AMH भी बॉर्डर लाइन है, तो उनको जल्द से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जल्द से जल्दी एटलीस्ट IUI साइकिल्स प्लान करना चाहिए, मैक्सिमम 3 IUI साइकिल्स, नॉट मोर देन दैट। अगर 3 साइकिल्स में वो कंसीव हो जाती है तो फिर गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं हो रही है तो आई थिंक शी शुड डायरेक्टली गो फॉर IVF, बिकॉज 34 ईयर्स बटरफ्लाइज, सो प्लीज ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और एक क्वेश्चन है, इज एडिनोमायोसिस लाइक एंडोमेट्रियोसिस? लिटिल डिफरेंट। बेसिकली जैसे मैंने बोला, एंडोमेट्रियोसिस है वो यूजुअली अंडकोश को अफेक्ट करता है, अंडकोश के आसपास की जो जगह हैं जैसे ट्यूब्स को अफेक्ट करता है। और एंडोमेट्रियोसिस इतनी खराब डिजीज है कि वो ब्लैडर को भी अफेक्ट करता है, यानी कि आपके पेशाब के थैली को भी जाके चिपक सकता है, आपके संडास की जगह को भी जाके चिपक सकता है, यानी कि we have seen bladder endometriosis, we have seen rectal endometriosis and we have seen omental endometriosis. So endometriosis is like, just मैंने बोला, it spreads. So before it spreads you have to get rid of it, you have to definitely see to it कि आपको nip the bud in the wise, जब वो छोटा है, जब वो सीमित है, तभी उसको निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो और आपके बाकी अवयवों को जाके अफेक्ट ना करे। अभी एडिनोमायोसिस ठीक है, वो सिर्फ बेचारा गर्भाशय को जाके बैठ जाता है और गर्भाशय को अफेक्ट करता है। एडिनोमायोसिस इज बेसिकली सूजन ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय को सूजन जो लाए, दैट इज एडिनोमायोसिस। जो मायोमेट्रियल सिस्ट होते हैं, मायोमेट्रियम में जो सूजन आता है, गर्भाशय का जो पोर्शन है मायोमेट्रियम, उसमें सूजन लाना और ओवरऑल गर्भाशय को बल्कि हो जाता है और सिम्टम्स उसके सिमिलर होते हैं। मासिक के टाइम पे आपको पेन हो सकता है, मासिक के टाइम पे आपको सिवियर हेवी ब्लीडिंग हो सकता है और गड्ढे गड्ढे पड़ सकते हैं। सो दैट इज एडिनोमायोसिस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, बट कभी कभी दोनों एक ही पेशेंट में पाए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। अदरवाइज यस, उनके दोनों के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एडिनोमायोसिस अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सूजन है और गर्भाशय हद से ज़्यादा बड़ा है, तो एडिनोमायोमा रिसेक्शन करना पड़ सकता है। जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस का रिसेक्शन करते हैं, सिस्ट निकालते हैं,
उसी प्रकार से अगर गर्भाशय में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो पेन रिलीफ के लिए और जो गर्भाशय का बल्क है वो रिड्यूस करने के लिए हम एडिनोमायोसिस का रिसेक्शन कर सकते हैं। एडिनोमायोमा जो सूजन की जगह है उसको हम निकालते हैं और फिर यूट्रस को स्टिच करते हैं। सो दिस इज एडिनोमायोमा रिसेक्शन। व्हाट कैन कॉज वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, हाउ टू क्योर इट? ओके, सो वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो दिखता है दैट इज कैंडिडियासिस। जो कैंडिडा एल्बिकन्स करके जो फंगस होता है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है, बहुत कॉमनली वजाइनल इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो अगर आपको जो इन्फेक्शन में अगर आपको कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो, जो दही जैसे डिस्चार्ज हो, स्मेली हो, बहुत टाइम से आपको जा रहा हो और आपको इचिंग हो रहा हो, तो आपको जान लेना चाहिए कि दिस इज फंगल इन्फेक्शन एंड कैंडिडियासिस, दैट इज सिवियर फंगल इन्फेक्शन। उसके लिए आपको स्पेशल कैप्सूल्स आते हैं जो आपको वजाइना में रात को इंसर्ट करना होता है। उसका 1 दिन का डोज आता है, 3 दिन का डोज आता है और 7 दिन का डोज आता है। तो जो भी आपका जो इन्फेक्शन है उस हिसाब से हम आपको आपका डोजेज प्लान आउट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको आपको डेफिनेटली क्लीन रखना है। आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हो या फ्रीक्वेंटली आप चेंज कर सकते हो, यू नो, सो दैट आपको बार बार बिकॉज ऑफ मॉइस्चर बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो। और प्लस अगर आपको बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको शुगर नहीं है, क्योंकि डायबिटीज इज वन थिंग विच विल कॉज you to get recurrent infections, recurrent urine infections also, recurrent vaginal infections also, and of course your personal hygiene is of utmost importance. Okay, और एक दो सवाल है या share your number in the inbox. Yes, I'll share my number. मैं आपको नंबर भेजती हूँ, ओके? And if you don't mind, can I share your number? When your previous baby aborts, then next when do we plan a baby? Yeah, if अगर आपका प्रीवियस बेबी अबॉर्ट हुआ है, यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मिनिमम ऑफ 4 to 6 months। अगर बेबी थोड़े 6 months या 8 months में अगर अबॉर्ट हुआ है तो फिर 6 months to 1 year ज़रूरी होता है कि लेडी को वेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसका गर्भाशय नॉर्मल लेवल पर आए, उसके हॉर्मोन्स, उसका खुद का मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ should come back to normal, because abortion is a very it should not happen to any lady. If at all it happens, then yes, psychologically वो घिस जाती है, psychologically वो sad हो जाती है, so she needs to come back to a normalcy, थोड़ा normal life उसको जी लेना चाहिए, and then we can definitely plan her baby. So I think 6 months minimum, and if you are young enough, you can wait for a year also. And if you have had an abortion in your 6th or 7th month, then yes, you have to wait for a longer time. Yeah, there's one more question. One of my friend has heavy menstrual bleeding since 2 months, approximately 15 days. She bleeds. Her thyroid and prolactin are normal. Ultrasound shows chronic cervicitis, but she doesn't have any white discharge. Okay. So just as I told, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बताया था कि उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपको एक दूरबीन डाल के हिस्ट्रोस्कोपी करके उनको देख लेना चाहिए कि और कोई कारण नहीं है। उनका एज आपने मेंशन नहीं किया है, बट येस, इफ़ योर फ्रेंड इज लिटिल on the higher side, if she is more than 30, 35, 40 years of age, then you have to be very careful, because if she is little more aged, then there could be a chance of cancer or any other factors. Like we have to check her endometrium, उनका जो endometrium का जो yes 27 years, okay. If she is young, then you may not worry, but अगर उनको पॉलिप हो, मस्सा हो
या अंदर कुछ फाइब्रॉइड हो, वो आपको चेक करना है। और कभी कभी जो सर्विक्स में, जो गर्भाशय के मुख पे जो जख्म हुई होती है, वो भी कभी कभी ब्लीड करता है। सो शी मे नीड सर्वाइकल कॉटराइजेशन या सर्वाइकल बायोप्सी लेके आप वो तपास के लिए भेज सकते हो। प्लस गर्भाशय का जो अंदर का जो भाग है वो चेक करके उसकी सफाई करके आपको भेजना है कि वो कौन से ऐसे सेल्स है जिसके कारण उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। ओके और अगर उसको अगर उनको ऑलरेडी शी इज ऑलरेडी कंसीव्ड एंड कंसीविंग के बाद शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, so there is one more thing which you can use. There is intrauterine device called levonorgestrel. Okay, I will not take the name of the product, but yes, LNG, that is levonorgestrel intrauterine delivery system, जिसके कारण आप वो कॉपर्टी जैसे अंदर जाती है, चुपचाप से बैठ जाती है। 5 साल तक योर फ्रेंड विल बी हैप्पी, शी विल बी अ हैप्पी सोल। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर हर। थोड़ा सा क्लीन करने का और लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम डिवाइस इंसर्ट करना है। 5 years की आती है एंड she'll really thank you and she'll be the most happiest person on earth. Okay, there are some more questions. Hatem, do we have time? So can we take supplements before planning? Yes, of course you have to take supplements. You have to take folic acid, you have to take multivitamin tablets, and of course you can take vitamin C tablets. And nowadays, because of such situations, you should moreover keep a check on your physical health, and you should not fall ill very often. You have to definitely take supplements so that your body is primed, your body is healthy enough to carry a baby till term. Can you take supplements before planning? Okay. Fine. Doctor prescribed her medroxyprogesterone for 21 days. Okay. So the same question, जो 27-year-old girl है उसको जो medicines दिए हैं, yes, that will give her temporary treatment, but then after she finishes those tablets, again she will start getting bleeding, again she will start menstruating. So then at that time you have to be really really careful. Just ask her to get a sonography done, and we'll also have to do her hysteroscopy, यानी कि uterus का जो inner lining है उसका हमको check करना पड़ेगा. Okay, there's one question. I'm planning a baby. Can you give some tips? My cycle is normal. I'm not able to judge my ovulation as I have checked my ovulation. I ovulate on 9th day. Can you tell me what can I do? Yeah. So what you do is you have to see to it that you have to just get a sonography done. I don't know how you have checked your ovulation, but I think it is by LH kit. So if it is just LH kit, what I would suppose that you have to just see to it that you are ovulating well on sonography, because sonography के माध्यम से जो हमको 91 to 99% we are getting the surety कि हाँ बीज रप्चर हुआ है, स्त्री बीज निकला है। उतना श्योरिटी हमको सिर्फ केवल LH किट में उतना श्योरिटी नहीं आ सकता है. So what I would suggest you is just get a sonography done, and then your gynec will be able to tell you perfectly when you have ovulated, and we can just help you out with how do we plan your baby, and then accordingly you can have natural planned relations. And of course, if you've been planning for a little longer time, you can also check the tubes and husband ka semen examination. That is of very very important factor which sometimes gets missed. 20 weeks and doctor advised about. Okay, so this is one last question which I would then we are falling short of time. There are many other questions, but I would love to answer all of them, Hatim. So there's one last question. Congenital heart disease in my first baby, 20 weeks, and the doctor advised to abort. Then what do I do, and how do I plan my second pregnancy? Yes, so in the second pregnancy, there is little bit of a chance that you have to be very careful while planning your second pregnancy. You have to see to it that your baby does not get a recurrent, again, a congenital heart disease.
it may not get also, it is sometimes sporadic, कभी कभी बस हो जाता है वो फर्स्ट बेबी का जो भी है डेस्टिनी. बट you have to do your sonographies little often. आपको जो है एनटी स्कैन करना है. एनटी स्कैन यानी क्या होता है, 11 to 14 वीक्स में ही पता चल जाता है कि बेबी में कुछ कार्डियक डिफेक्ट है कि नहीं. तो वो आप ज़रूर करना इन योर सेकेंड प्रेगनेंसी. और आपको डबल मार्कर टेस्ट या NIPT टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि बेबी इज जेनेटिकली नॉर्मल. एंड ये जो हार्ट डिजीज है वो 11-14 वीक्स में भी हमको काफ़ी कुछ पता चल जाता है. एटलीस्ट जो वर्किंग ऑफ द हार्ट है उसके बारे में पता चल जाता है. ओके, सो आई गेस मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आपके जो क्वेरीज थे मैं आंसर कर पाई. और थैंक यू आपके सारे, आपने इतना सा अच्छा पार्टिसिपेट किया और मुझे क्वेश्चंस पूछे. So it's been a great session so far, but I'll have to take your leave now. I hope many of you you have got your doubts cleared and resolved through this session, and I will help you. So whenever you want, you can just say I am fine. And please, Hatim, if possible, some people have asked for my email or for my mobile number. So if possible, just you can just share it across. Thank you so much, Team Bayer. Thank you, Siji. Thank you, Birju. Thank you, Hatim. And thank you, my audience. Have a good day. Have a great day. Bye.